Okay. Next point, 8.3, electric potential and potential energy. So, what is mean by electric potential or potential energy? तो दोस्तों, electrostatic potential energy is nothing but work done against electrostatic force to achieve certain configuration of charges in given system. Electrostatic potential energy is the work done against the electrostatic forces to achieve a certain configuration of charges in a given system. Since every system tries to attain the lowest potential energy, so work done is always required to change the configuration. As like charges repel each other and unlike charges attract each other. So charge always exert force on any other charge near it. So some work is always done to move a charge in the presence of another charge. Thus, potential energy arises from any collection of charges. Now let us see expression for potential energy. So consider charge plus Q is placed at this point O and another test charge plus Q naught is at point A in the electric field of charge plus Q. So see, consider a charge plus Q is placed at point O and a small charge plus Q naught be brought from point A to point B at respective distances R1 and R2 from origin O against the repulsive forces on it. ये चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो देयर विल बी रिपल्शन. तो हमको अगर ये प्लस क्यू नॉट चार्ज प्लस क्यू के पास लाना है तो हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस. सो ये हमको ए पॉइंट से इधर बी साइड को लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एंड देयरफॉर वर्क शुड बी डन. So let vector Fe be the work done against the electrostatic force in displacing charge Q naught through a small displacement dr, vector dr. So to increase, therefore, increase in the potential energy of system is given by du is equals to vector Fe dot vector dr, that is nothing but minus Fe dot dr. So that is first point. Here negative sign indicates that displacement is against the electrostatic force vector Fe. उसके opposite किया. Therefore total work done delta U is equals to, that can be obtained by taking integration of du from position A to position B, and therefore delta U is equals to integral from R1 to R2 of du. That's equals to integral from R1 to R2 of du की वैल्यू माइनस Fe इंटू वेक्टर dr. अभी Fe is nothing but force which is given by Coulomb's law, that is nothing but minus 1 by 4 pi epsilon 0 into q naught upon r square into cap r. अभी ये तो मैग्नीट्यूड हो गई. कैप r is nothing but यूनिट वेक्टर वो डायरेक्शन के लिए. सो वेयर cap r is unit vector in the direction of r bar, and negative sign indicates that vector r and vector Fe are opposite to each other. So therefore delta U क्या हो जाएगा, integral from R1 to R2 of du, that is integral from R1 to R2 du की वैल्यू that is minus in bracket 1 by 4 pi epsilon 0 into q naught upon r square into cap r dot dr. तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट रहेगा, माइनस इन ब्रैकेट 1 by 4 pi epsilon 0 into q नॉट इन ब्रैकेट अभी इसकी r स्क्वायर की इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 to r2. तो बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमें मालूम है x रेज टू n इंटीग्रल dx अगर है तो इसकी इंटीग्रेशन हम क्या लेते हैं, x रेज टू n plus 1 डिवाइडेड बाय
n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो इसी हिसाब से ये r रेज टू 2 है लेकिन डिवाइड बाय है, तो ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, r रेज टू -2। तो इंटीग्रेशन इसकी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन r रेज टू -2 dr दैट इज इक्वल टू r रेज टू -2 प्लस 1 divided by -2 plus 1. So that is nothing but r raised to -1 upon -1. So that is nothing but ये ऊपर लेता हूं -1 और ये फिर से नीचे लेने के बाद r raised to 1 हो जाएगा। So therefore its integration is -1 upon r from r1 to r2। तो अभी इसकी वैल्यू इधर यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट, ये जो माइनस है और ये माइनस डबल माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो खाली रिमेनिंग इन ब्रैकेट 1 by 4 pi epsilon 0 into q q naught in bracket 1 by r2 minus 1 by r1। So that is delta u. This change in potential energy is equal to work done WAB against the electrostatic force. So therefore work done AB is equals to delta U, that is in bracket 1 upon 4 pi epsilon 0 into q q naught in bracket 1 by r2 minus 1 by r1। तो ये हो गया वर्क डन फ्रॉम r1 to r2। B, if 2 points, two charges q1 and q2 are separated by r such that r1 is equals to infinity and r2 is equals to r। इसमें से ये जो r1 है तो इन्फिनिटी, मतलब चार्ज जो है तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है एक, और r2 becomes r, then replace here, so ur is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 q2 upon, यहाँ हो जाएगा r2 that is r और r1 infinity, तो 1 by infinity that is 0, so खाली 1 by r remaining, so therefore q1 q2 upon r। So this is expression for two charges if they are separated at infinity। Now unit of potential energy, SI unit is joule, just like regular। Another convenient unit of energy is electron volt, which is change in kinetic energy। Electron volt, that is nothing but change in kinetic energy of electron while crossing 2 points maintained at potential difference of 1 volt। So therefore 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule। Also 1 milli electron volt, that is ये 10 रेज टू माइनस 19 है, मिली के लिए 10 रेज टू माइनस 3 हो जाएगा, तो उसमें 10 रेज टू माइनस 3 बढ़ने के बाद 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 22 जूल। और अगर किलो लेना है तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6, ये जो माइनस 19 है उसमें किलो के लिए प्लस 3 ऐड हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा -19 plus 3, that is -16। So therefore 1 kilo electron volt is equals 1.6 into 10 raised to -16 joule। Now let us discuss electric potential। We know that potential energy of two particle system at a distance r from each other, अभी अभी हमने जो derive किया, that is given by ur is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 q2 upon r। Therefore ur is equals to in bracket q1 upon 4 pi epsilon 0 r into q2, that is equals to in bracket q2 upon 4 pi epsilon 0 r into q1। मतलब ये q1 q2 है तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या किया, q1 लेके q2 सेपरेट रखा, इज इक्वल्स टू सेकेंड ब्रैकेट में फिर से क्या किया, q2 लिया और q1 सेपरेट रखा, दोनों का प्रोडक्ट ही है तो टर्म ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, दैट इज नथिंग बट ur, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। Hence the quantity q upon 4 pi epsilon 0 r depends upon the charge q and the location of point at a distance r from it। This is defined as electrostatic potential of charge q at a distance r from it, and that is denoted by Vr is equals to q upon 4 pi epsilon 0 r। In terms of potential, we can write the potential energy of two charges system as ur is equals to v1 r dot q2 is equals to v2 r dot q1, where v1 r and v2 r
are the respective potentials of charges Q1 and Q2 at distances r from either. Electrostatic potential energy is nothing but also electric potential V multiplied by charge Q, और इससे टर्न किया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये चार्ज इधर डिवाइड आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऐसे भी हम बता सकते हैं. So that is nothing but V equals to U upon Q, electrostatic potential energy per unit charge. Now, electrostatic potential energy between any 2 point in an electric field, that is V2 minus V1, subtraction हो जाएगा. That is equals to U2 minus U1 upon charge Q. और U2 minus U1, that is nothing but difference between energy which is work done. So dW upon Q, that is nothing but work done dW. So V2 minus V1 is resultant work done. Now, relation between electric field and electric potential. So consider यहाँ point O के पास चार्ज प्लस Q is placed, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की will be away from that charge which is denoted as this one, वेक्टर E. तो यहाँ पॉइंट M कंसिडर किया है और उसके पास ही पॉइंट N थोड़े डिस्टेंस पे, दैट इज डिस्टेंस dx. So consider a charge plus Q placed at point O. Let us calculate work done to move a unit positive charge from point M to N through a small distance dx from M against the direction of electric field. Now, force acting on unit positive charge is along vector OM. Therefore, work done dW equals to minus F into dx. That is equals to minus E into dx. Negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed. As work done on unit positive charge is dW, that is equals to dV, अभी हमने ऊपर देखा है, that is equals to difference in potential between M and N, and therefore dV is equals to minus E into dx. तो ये माइनस और dx इधर अपोजिट दिया तो dx डिवाइड आ जाएगा, and therefore E is equals to minus dV by dx. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू माइनस dV by dx. अभी ये dV इज नथिंग बट पोटेंशियल और dx नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट. Thus, electric field at a point in an electric field intensity at a point in an electric field is negative of potential gradient at that point, that is minus dV by dx. Next point, students, electric potential due to a point charge. Consider यहाँ at point O charge plus Q is situated. So around that charge Q there will be electric field. So in that electric field, consider point M. Electric intensity is away from the charge which is directed along this OM denoted by vector E. Let M is any point from charge O at distance x. So consider a point charge plus Q is placed at point O. As we discussed, electric potential हमने अभी देखा ही है, at any point it is amount of work done per unit positive charge which is displaced from infinity to point A. Let M be any intermediate point on this path at distance x from O. The electrostatic force on a unit positive charge at M is given by formula में अभी देखा है, F is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q upon x square, and it is directed away from charge along OM in the diagram. For infinitesimal displacement dx, very small displacement dx from M to N, मतलब
पॉइंट एम यहाँ है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, तो उसके अपोजिट हमने एम पॉइंट से एन पॉइंट तक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx किया है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द वर्क डन इज गिवन बाय dw इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू dx. तो यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट displacement is opposite to force. Now this is small work done for small displacement dx. So total work done in displacing unit positive charge from infinity to point A is obtained by integrating work dw. तो dw का इंटीग्रेशन लिया तो टोटल वर्क मिल जाएगा. तो वर्क w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r ऑफ dw, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r dw की वैल्यू माइनस एफ इंटू dx. और एफ का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, दैट इज माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx. अभी इसमें 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और चार्ज q ये तो कांस्टेंट रहेगा. सो टेकिंग आउटसाइड वर्क w इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ये डिवाइड बाय x है तो ये ऊपर लिया, इट बिकम्स x रेज टू माइनस 2. सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस 2 dx. अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. तो इसका x रेज टू माइनस 2 है, प्लस 1 किया तो माइनस x रेज टू माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस 1. तो ये माइनस 1 लिया ऊपर और x रेज टू माइनस 1 हो जाएगा तो वो नीचे करके पॉजिटिव किया. सो इसकी इंटीग्रेशन हो गई माइनस 1 अपॉन एक्स और लिमिट है फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, तो ये ऐसे ही रखा है लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. अब क्या करना है, x के जगह एक बार x रिप्लेस करना है, r रिप्लेस करना है और इन्फिनिटी रिप्लेस करना है. सो वर्क w इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज. 1 अपॉन x है तो उसके बदले पहले हायर लिमिट 1 अपॉन r माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी, दैट इज माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी. नाउ 1 अपॉन इन्फिनिटी इसकी वैल्यू कितनी है 0, 1 बाय इन्फिनिटी का मतलब 0, तो खाली इतना ही टर्म रहेगी 1 बाय r. सो वर्क w इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r. सो दिस इज वर्क डन. Now, by definition, this work done is called as electrostatic potential, and therefore, potential V is equals to W, that is nothing but Q upon 4 pi epsilon 0 R. Now, if point is at infinity, that means R, distance R is infinity, then at infinity, V is equals to Q upon infinity, or 1 upon infinity अभी हमने देखा है that becomes 0, so therefore V is equals to 0. So these are the expressions for electric potential. Okay students, next point now. अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और उसका एक एक्सप्रेशन क्या देखा है, याद रखो ये अभी रेफरेंस में आएगा, दैट इज V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R. तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, हमने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है, याद है क्या, देखो डायपोल मतलब टू चार्जेस. सो इलेक्ट्रिक डायपोल दैट इज 2 पॉइंट चार्जेस विच आर अनलाइक, आई मीन एक चार्ज प्लस होगा तो दूसरा माइनस और उनकी मैग्नीट्यूड सेम. सो टू अनलाइक पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, फिनाइट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हम 2l से दिखाते हैं. समझो सेंटर O है तो वन साइड डिस्टेंस इज l, अदर साइड l, सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट 2l. तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल. तो अभी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है वो कितना मिलता है वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो सी इन द डायग्राम, एट पॉइंट A चार्ज प्लस Q इज सिचुएटेड, एट पॉइंट B चार्ज माइनस Q इज सिचुएटेड.
और ये दोनों में जो डिस्टेंस है, सेंटर दिया है O, वन साइड डिस्टेंस L, अदर साइड डिस्टेंस इज आल्सो L, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2L. तो AB is nothing but electric dipole. So see here, consider an electric dipole AB consisting of two charges plus Q and minus Q separated by distance 2L. Let P bar is equals to electric dipole moment. ये भी हम 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा है. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? P is equals to Q into 2L, that is charge into 2L, that is distance between two charges, and it is directed from minus Q to plus Q. तो उसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक? माइनस चार्ज माइनस Q से प्लस Q की डायरेक्शन से, जो डायग्राम में हमने P बार से इधर दिखाया है. The line joining the center of the two charges is called as axis of dipole, and perpendicular bisector of that axis, that is called as equator. ये हम बाद में यूज करेंगे. तो let C be any point near the electric dipole at a distance r from center O inclined at angle theta with the axis of the dipole. ये पॉइंट C यहां है, सेंटर से ज्वाइन किया तो उसका डिस्टेंस r दिखाया है, और angle with the axis, that is denoted as theta. Okay, so and next, r1 and r2 be the distances of the point C from charges plus Q and minus Q respectively. So plus Q charge, यहां से C का डिस्टेंस जो है वो r1 दिखाया है, that is AC r1, और चार्ज माइनस Q which is at B, so CB distance, that is denoted as r2. अभी डायग्राम में देखो, ए से ये ओसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये अगर थीटा है तो ये अपोजिट साइड क्या हो गई? एल साइन थीटा, और ये भी अपोजिट साइड हो गई एल साइन थीटा. ये हमें बाद में रेफरेंस लगने वाला है. नाउ सी, now electric potential at C due to charge plus Q at A is given by V1 is equals to charge plus Q upon 4 pi epsilon 0 R1. First point, this is electric potential due to charge plus Q. Same वैसे ही, and potential at C due to charge minus Q at B is given by V2 is equals to minus Q upon 4 pi epsilon 0 into R2 second. तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से. अभी दोनों का कंबाइंड रिजल्ट, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वो कितना होगा? Vc इक्वल्स टू V1 प्लस V2, मतलब इस दोनों की एडिशन. तो इस दोनों की एडिशन में क्या कॉमन है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन ही है, तो ये हमने इधर कॉमन लिया, और दोनों की एडिशन लेना है, तो V1 में क्या रिमेनिंग? 1 अपॉन R1, और V2 में ये माइनस और डिवाइड बाय R2, मतलब माइनस 1 बाय R2. सो ब्रैकेट में रहेगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. नाउ फ्रॉम फिगर अगर आप देखोगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा. ये यहां से रेफरेंस करके, सो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया R स्क्वायर और ये L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो क्या हो गया? R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा. और सिमिलरली ये R2, मतलब ये डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा इस ट्रायंगल के लिए. सो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा. तो ये R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू हो गई. तो अभी इसी में से सिंप्लीफाई करने के लिए R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इस इन थ्री टर्म से R स्क्वायर कॉमन निकालते, तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इन ब्रैकेट यहाँ 1 रिमेनिंग, प्लस यहाँ रहेगा L स्क्वायर बाय R स्क्वायर, माइनस इसको R स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद एक R कैंसिल हो जाएगा, सो 2L cos थीटा अपॉन R, सो दैट इज 2L cos थीटा अपॉन R. ये माइनस और R2 स्क्वायर के लिए इधर प्लस है, सो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू सेम R स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2L cos थीटा अपॉन R. ये R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू. अभी फॉर शॉर्ट डाइपोल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, इसका मतलब क्या?
अगर डायपोल छोटा है और पॉइंट लाइज एट लार्ज डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो एल बाय आर बिकम्स वेरी स्मॉल, ये रेशियो बहुत छोटा हो जाएगा। तो एल बाय आर इज वेरी स्मॉल, तो उसका स्क्वायर करने के तो और भी छोटा हो जाएगा। सो वी कैन निग्लेक्ट दैट एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो निग्लेक्टिंग एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो आर आर वन स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहां से इस ब्रैकेट में आर वन स्क्वेयर से ये ड्रॉप ही करना है, एल स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। तो क्या रिमेनिंग, 1 माइनस 2 एल कॉस थीटा अपॉन आर। सो आर वन स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 एल कॉस थीटा अपॉन आर, और आर टू स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 एल कॉस थीटा अपॉन आर। तो ये आर वन स्क्वेयर और आर टू स्क्वेयर की वैल्यू, अभी स्क्वेयर रूट लिया तो क्या होगा, आर वन इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 एल कॉस थीटा अपॉन आर, ब्रैकेट रेज टू हाफ, स्क्वायर लेना है। और आर टू इज इक्वल टू सेम वैसे ही आर इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 एल कॉस थीटा अपॉन आर, ब्रैकेट रेज टू हाफ, ये स्क्वायर रूट हो गया। अभी हमको इधर इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 बाय आर टू, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर हाफ है वो निगेटिव हो जाएगी, माइनस हाफ, और ये भी पावर माइनस हाफ हो जाएगी रेसिप्रोकल करने के बाद, मतलब 1 बाय आर वन और 1 बाय आर टू की वैल्यू। So see here, 1 by r1 is equals to 1 upon r in bracket 1 minus 2l cos theta upon r, bracket raised to minus half। और दूसरा 1 by r2 is equals to 1 upon r in bracket 1 plus 2l cos theta upon r, bracket raised to minus half। तो ये 1 by r1 और 1 by r2 की वैल्यू। तो vc is equals to v1 plus v2 is equals to q upon 4 pi epsilon 0, तो कांस्टेंट है। इन ब्रैकेट 1 by r1 की ये वैल्यू, that is 1 upon r in bracket 1 minus 2l cos theta upon r, bracket raised to minus half, minus 1 by r in bracket 1 plus 2l cos theta upon r, bracket raised to minus half। अभी इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स प्रॉपर्टी का यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं। क्या, यूजिंग बायनोमियल एक्सपांशन 1 plus x raised to n is equals to 1 plus n into x for x is very very less than 1। अगर x की वैल्यू n x की वैल्यू 1 से कंपेयर करके बहुत ही छोटी है, तो उसका बायनोमियल एक्सपेंशन का रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस n इंटू एक्स एंड रिटेनिंग द फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स ऑफ l बाय r ओनली। तो ये कंडीशन यहां अप्लाई करने के बाद, और फर्स्ट ऑर्डर टर्म अपॉन l बाय r, मतलब ये जहां यहाँ l बाय r जो टर्म है उसकी फर्स्ट ऑर्डर टर्म ही लेना है, हायर टर्म निगलेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, vc इज इक्वल्स टू ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 1 बाय r रहेगा, और ब्रैकेट में इसका रिजल्ट 1 प्लस एल कॉस थीटा अपॉन r माइनस इसका रिजल्ट 1 माइनस एल कॉस थीटा अपॉन r। तो बीच में माइनस है, दो ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये माइनस इसको मिलेगा, तो ये -1 हो जाएगा। शुरू में +1 है, तो ये +1 और ये -1 दोनों कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो एल कॉस थीटा अपॉन r, और इसका भी एल कॉस थीटा अपॉन r। तो vc इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इन ब्रैकेट एल कॉस थीटा अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा अपॉन r, मतलब एक ही टर्म डबल एडिशन हो गई। दो देयरफॉर vc इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इनटू इसका एडिशन 2l cos थीटा अपॉन r। अभी इसमें इधर चार्ज q है न्यूमरेटर में, और 2l cos थीटा है, इसमें से q इंटू 2l एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख दिया, q इंटू 2l इंटू cos थीटा आगे एज इट इज। ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r और इसको डिवाइड बाय r है, ये दोनों का r स्क्वायर हो जाएगा। सो देयरफॉर vc इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q इंटू 2l। तो शुरू में हमने डिस्कस किया था, ये दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p यूज किया, आगे cos थीटा एज इट इज। तो vc इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। अभी इसको क्या किया, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर है, उसको r से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो यहां आ गया p इंटू r इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय r क्यूब हो गया। अभी इसको थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट का पॉइंट रेफरेंस लेते हैं। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड का स्केलर प्रोडक्ट याद है, तो a बार डॉट b बार इज इक्वल टू ab cos थीटा, ये स्केलर प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है।
मतलब ए बार डॉट बी बार हो तो ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो अपोजिटली अगर आपके पास ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा है तो उसके बदले आप ए बार डॉट बी बार यूज कर सकते हो। तो यहाँ क्या है, पी इंटू आर इंटू कॉस थीटा। तो इसी एक्सप्रेशन से इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पी बार डॉट आर बार। तो VC is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 into P bar dot R bar upon R cube. So this is expression for electric potential due to electric dipole. Also हमको यूनिट वेक्टर मालूम है, आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड आर। तो यहां से वेक्टर आर और ये आर क्यूब है, उसमें से एक आर सेपरेट किया तो वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड आर मिल जाएगा। तो उसके बदले आप आर कैप यूज कर सकते हो। देयरफॉर वीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू पी बार डॉट आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। ना स्पेशल केस देखिए, सपोज द पॉइंट सी लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अगर पॉइंट एक्सिस पे ही है तो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में जो यहाँ दिया है ये cos थीटा का, तो थीटा की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या फिर 180 हो जाएगी। सो cos 0 अगर हो तो उसकी वैल्यू 1 और cos 180 हो तो उसकी वैल्यू -1। इसका मतलब है इधर cos थीटा की वैल्यू या तो +1 हो जाएगी या -1। तो ये लेने के बाद इधर प्लस और -1 आ जाएगा। सो v along axis is equals to प्लस और -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। और अगर पॉइंट सी लाइज ऑन द इक्वेटर तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब v on the equator becomes 0. So you can say this is special case regarding the electric potential.